गुड इवनिंग। एज यू हैव सीन, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एग्जामिनेशन ऑफ cranial nerve first. I'm going to start the series of examination of all cranial nerves, that's from 1 to 12. And this video is going about the examination of first cranial nerve, that's what you know as olfactory nerve. It's a pure sensory nerve. अगर हम बात करेंगे ना olfactory nerve is a nerve which is responsible for sense of smell. That's the nerve which we call as olfactory nerve. अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास होता है एक epithelium, that's what we call as olfactory epithelium, which is present in the superior concha of the nose. जो हमारे superior concha of the nose होते हैं ना, उसमें होता है epithelium, जिसको हम कहते हैं olfactory epithelium. अगर हम olfactory epithelium की बात करेंगे ना, इसमें we had different types of cells and among them हमारे पास तीन तरह के cells होते हैं. First one is what you call as olfactory receptor cell. Second one is olfactory stem cell and third one is supporting cell. अगर हम बात करेंगे ना, आपको पता ही होगा कि all neurons मतलब जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, they cannot regenerate itself except the one that's what you call as olfactory neuron. The reason behind this is this one. Olfactory stem cell is a pluripotent cell, it is having a potency of undergoing division, and that is the reason we can get the olfactory receptor cell, which is a bipolar neuron, and that's why we say all neurons cannot regenerate except the olfactory neuron. अगर हम बात करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दिस इज द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. एंड कैसे होता है, हमारे पास जो होती है ना olfactory stem cell, olfactory receptor cell. olfactory receptor cell की अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास इसमें होती है एक सेल जिसको हम कहते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल. दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस. होता क्या है कि जब हमारे पास कोई स्मेल आती है ना, कोई स्मेल आती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूल आता है ना, वो चला जाता है हमारे पास हमारे नोज में, एंड the mucus secreted by this cell gets dissolved into it. फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास होता है सेल पे एक रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं GPCR रिसेप्टर. GPCR के साथ बाइंड होते हैं G protein coupling रिसेप्टर. इसके साथ जो टेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड होता है एंड रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, दैट्स व्हाट यू कॉल एज एडेनाइल साइक्लेज. होता क्या है, जब एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम होती है ना एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स increases the level of cyclic AMP. Cyclic AMP acts as a secondary messenger and that leads to the depolarization in the olfactory receptor cell, and depolarization leads to the generation of the action potential, and action potential travels along the olfactory nerve and travels into the brain, where this on the basis of the मतलब हमें पता होना चाहिए कि on the basis of recognition हमारे पास होती है different types of smells की identification. The topic wasn't about the physiology of the sense of olfaction, but the topic was about the clinical examination. How we does the clinical examination? अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है ना, तो हम कैसे clinical examination करते हैं? तो करना क्या है, हमें 3 bottles लेनी है with different smells. Let's suppose this is the one bottle, इसमें हमारे पास 3 different smells लेनी है. Let it be हम soap water ले सकते हैं, कोई भी smell which is known to the patient, because it is based on the behalf of recognition. ये ऐसा नहीं है कि हमें we can identify all the smells that are present in the nature. तो करना क्या है हमारे पास, let's suppose this one is, अगर हमारे पास ये बोतल है ना, तो हमें क्या करना है, ऐसी बोतल लेनी है. तो पेशेंट को कहना है, लेट्स सपोज क्योंकि पेशेंट फैमिलियर नहीं है, पेशेंट को पता नहीं है कि जो स्मेल तुम्हारे पास है पेशेंट को पता नहीं, तो पहले क्या करना है, पेशेंट को देना है अल्टरनेटिवली, उसको एक नॉस्ट्रल को बंद करे और इसको स्मेल करे और फिर बताना है दिस इज अ सोप वाटर, दिस इज अ कोलोन ऑयल एंड दिस इज मे बी नेफ्थलीन भी हो सकता है, एंड ऐसे ही करना है. तो अब बात आती है एग्जामिनेशन की. एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको पेशेंट को रखना है ऐसे ही, पेशेंट को बोलना है आंखें बंद करो, क्योंकि वो ऐसे भी बता सकता है देख कर भी कि दिस इज दिस, बट हमें आइडेंटिफिकेशन
ओलिफैक्टरी नर्व की करनी है, ऑप्टिक नर्व की नहीं करनी। तो करना क्या है, उसको बोलना एक नॉस्ट्रल बंद करेगा। जब वो एक नॉस्ट्रल बंद करेगा ना, तो इसको लेना है एक नाक के पास, और उसको बोलना है कि इनहेल करके मुझे बताए, आइडेंटिफाई करे। If the person is able to identify all the smells, means a person's cranial nerve is intact and is working normally। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पहले हमारे पास ऐसा भी देखना है कि पर्सन को, मतलब किसी को ये मत ना है, फ्लू विलू मत ना है, या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मत ना है, कि ये नेजल पैसेज चेक करनी पड़ेगी। लेकिन और करना क्या है, दिस हैज़ टू बी डन ऑन द बोथ साइड। ये नहीं कि एक साइड से किया दूसरी साइड से छोड़ दो, एक साइड से किया फिर दूसरी साइड, ऐसी अल्टरनेटली, लेकिन आंखें बंद करके। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स इसमें। अगर हम क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करेंगे ना, क्लिनिकल में क्या आता है इसमें, एक आता है हमारे पास हाइपोस्मिया, और आता है एनोस्मिया। हाइपोस्मिया में क्या होता है, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल, एंड एनोस्मिया में टोटल ही स्मेल नहीं आती है। इट कैन बी, अगर हमारे पास क्रेनियल नर्व लीजन होगा, या सेरेब्रल, या मतलब स्ट्रोक होगा, या कोई भी चीज़ होगी, तो उसमें कोई अल्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा इस व्हाट कॉल एज पैरास्मिया। पैरास्मिया क्या होता है, थोड़ा मतलब उधर इधर की स्मेल आती है, मतलब स्टैगर्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस, एंड अनदर वीडियो इज गोइंग ऑन optic nerve second, optic nerve, that's cranial nerve second. Hope you enjoyed. Thank you.